In this video, I'll discuss Banker's algorithm that is also used for deadlock avoidance. In the last video, we have done one algorithm called resource allocation graph algorithm, and this is the next algorithm. And it can be used in banks, so its name is called, that is why it is called Banker's algorithm. And it works for multiple instances also. That means the last algorithm was not working for the multiple instances, that if one single process is having multiple copies, in that case this Banker's algorithm works very fine. So in this case, new process must declare its maximum need. Whenever a new process enters in a system, it must declare that how much resources it will need and the maximum instances it need of each resource beforehand. Before allocation, system checks whether the system will be in safe state after that allocation. So it is allocation. अगर allocation करने के बाद भी हमारा सिस्टम सेफ होता है तभी हमारा सिस्टम उसको allocate करेगा, अदरवाइज वो सिस्टम उसको वेट स्टेट में रखेगा, बिकॉज अगर कुछ एलोकेशन से हमारा सिस्टम अनसेफ होता है तो वो वाली एलोकेशन सिस्टम नहीं करेगा. सो वी आर अवॉइडिंग द डेडलॉक बिफोर हैंड. वी डोंट वांट द डेडलॉक टू बी अकर, सो वी आर टेकिंग नेसेसरी मेजर्स बिफोर हैंड, एंड with that knowledge system is able to find whether it should allocate things or not allocate. So it uses some data structures. So what is data structure? Data structure means it's a way of storage, like how the things should be stored. So data structure, as we have already know, that it can be array, matrix, linked list, all are data structure, that all are the way to store the things in the memory. So in this case we have 4 data structures that are very important in this Banker's algorithm, and these are very simple. Available is a vector, is 1D array, ठीक है, and in this case we have m number of resources. So the length of available resources, जो हमारा available vector है, array है, उसकी length है m bits, m उसकी length है, and n is the number of processes in the system currently जो कि active है, n number of processes, m number of resources हैं, और हर resource के different instances हैं. Maximum क्या है? Maximum is a matrix, is a 2D array of length n into m. n defines the number of processes, m defines the number of resources. So maximum का मतलब क्या है? बिफोर हैंड प्रोसेस ने बोला है कितनी उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो मैक्सिमम में डिफाइन करनी है. एलोकेशन का मतलब है कितना अभी तक हमने उसको ऑलरेडी एलोकेट कर दिया हुआ है. नीड मतलब क्या है कि कितना फ्यूचर में उसको और चाहिए है. सो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वी विल टेक अगेन बैंक्स एग्जाम्पल. लेट्स से बैंक के पास जितना कैश अवेलेबल है तो वो हम उसको अवेलेबल में लिखेंगे कि अभी बैंक के पास कितना कैश अवेलेबल है. मैक्सिमम का मतलब क्या है? हर एक कस्टमर बताएगा कि उसको मैक्सिमम कितना कैश चाहिए होगा इन दिस पर्टिकुलर टाइम स्पैन. उसको कितना, जितनी देर वो बैंक का कस्टमर रहेगा तो उसको कितना मैक्सिमम कैश चाहिए होगा फ्रॉम द बैंक. तो मैक्सिमम जो है इट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन द टोटल कैश, टोटल अमाउंट आई वुड से. ये नहीं हो सकता कि अगर बैंक शुरू में जब बैंक स्टार्ट हुआ है या बैंक की स्टेट है तो उसके पास अवेलेबल कैश है जितना, उससे ज़्यादा आप डिमांड नहीं कर सकते. सो मैक्सिमम मस्ट ऑलवेज बी लेस देन द टोटल अवेलेबल, नॉट द करंटली अवेलेबल बट द टोटल अवेलेबल. सो मैक्सिमम इज कस्टमर बताएगा कि उसको कितना कैश चाहिए है एट द मैक्स. एलोकेशन का मतलब है कितना कैश उस मैक्सिमम में से उसको मिल गया है, बैंक ने उसको एलोकेट कर दिया है. अब नीड क्या होगी? कितना उसको चाहिए था एट मैक्स और कितना उसने अभी एलोकेशन करवा लिया है. सो नीड विल ऑलवेज बी मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, मतलब उसकी अभी फ्यूचर नीड कितनी हो सकती है, दैट इज़ नीड. सो ये डेटा स्ट्रक्चर्स वी विल मेंटेन, एंड उसमें फिर हम चेक करेंगे कि ये वाली एलोकेशन करने से सिस्टम डेडलॉक में ना जाए. अगर नहीं जा रहा तो वी विल एलोकेट, अदरवाइज वी विल keep the process on waiting. So in this Banker's algorithm we have 2 further algorithms. There are 2 algorithms in this. First is the safety algorithm, second is resource request algorithm. So in this case safety algorithm का काम है to make a safety sequence.
safe sequence. In the last video I have discussed what is safe sequence. Safe sequence क्या है? अगर सिस्टम सेफ है तो देयर मस्ट बी अ सीक्वेंस कि किस ऑर्डर में प्रोसेसेस ख़त्म हो जाएंगे. अगर सेफ्टी एल्गोरिदम इज़ एबल टू मेक द सेफ सीक्वेंस इन अ सिनेरियो तो बोलेंगे सिस्टम सेफ है, अदरवाइज सिस्टम अनसेफ है. रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम क्या करती है? ये जितनी भी उसकी रिक्वेस्ट है वो चेक करती है कि क्या हम उसको अभी ये वाली रिक्वेस्ट जो उसकी एलोकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. पहले ये प्रिटेंड करती है कि हमने लेट से उसको अमाउंट दे दिया, फिर उसके बाद ये सेफ्टी एल्गोरिदम को कॉल करेगी. दिस एल्गोरिदम विल ऑलवेज कॉल दिस एल्गोरिदम एंड अगर सेफ्टी एल्गोरिदम कहती है कि यस सिस्टम इज सेफ तो रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिदम उसको रिसोर्सेज एलोकेट कर देगी, अदरवाइज वो रोल बैक हो जाएगी. रोल बैक का मतलब है नहीं तो वो पुरानी स्टेट को ही करंट स्टेट बनाएगी. सो विल सी ऑल दीज थिंग्स विद एन एग्जाम्पल टू. सो लेट्स सी द इलैबोरेशन ऑफ द सेम टॉपिक. नाउ Banker's algorithm. This algorithm is applicable to a system with multiple instances of each resource type. Whenever we have multiple instance of resources, then we can use this algorithm. The name is chosen because algorithm could be used in banking system to ensure that the bank never allocated its available cash in such a way that it could no longer satisfy the needs of its customers. It means कि बैंक किस ऑर्डर में अपना कैश एलोकेट करे ताकि वो कोई ऐसी सिचुएशन में ना आ जाए कि उसके पास कैश बचे ना फॉर द फर्दर कस्टमर्स. एंड अब इस केस में क्या है? नाउ विल कम टू दिस कंप्यूटर सिस्टम. अब जब भी व्हेन ए न्यू प्रोसेस एंटर्स इन अ सिस्टम, द सिस्टम it must declare its maximum need of all the instances of resources. So this is the main thing because beforehand we are taking measures. तो हमें पहले ही every process को declare करना पड़ेगा कि this is the maximum need of resources. और resources में भी let's say एक process को multiple instances चाहिए होती हैं. For example किसी भी अगर एक resource को multiple instance of सेम रिसोर्स की चाहिए तो उसको नंबर बताना पड़ेगा कि उसको 2 प्रिंटर चाहिए, 2 फाइल्स चाहिए, 3 फाइल्स चाहिए. सो ऑल इंस्टांसेस ऑफ मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ ऑल द रिसोर्सेज प्रोसेस नीड्स टू डिक्लेयर बिफोर हैंड. नाउ व्हेन ए यूजर रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स सिस्टम will check whether this allocation will leave the system in safe state. If yes, then allocate, otherwise the process will wait. तो इसका मतलब क्या है? जब अब पहले तो उसने डिक्लेयर कर दिया जैसे रिसोर्स एलोकेशन में करता था कि मुझे चाहिए है इन फ्यूचर. लेट्स से व्हेन द प्रोसेस एक्चुअली डिमांडेड फॉर द रिसोर्सेज, देन द सिस्टम विल रन दिस एल्गोरिदम एंड विल चेक वेदर वी शुड एलोकेट दिस रिसोर्सेज और दिस प्रोसेस शुड वेट. नेक्स्ट इज द डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड. In this case, I have already discussed that there are several data structures which should be maintained for this particular algorithm. Here n is the number of processes and m is the number of resources. Now in this case, available is a vector, is an array of length m indicating the number of available resources. If you are not getting it right now, we will get it when we will do the example. So just try to understand it. ए वेक्टर ऑफ लेंथ m है हमारे पास, उसमें हमें बताएगा कि नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं. मैक्सिमम क्या है? इज़ अ 2D एरे. 2D एरे क्या है? इसमें अगर हमने लिखा मैक्स ऑफ i j इज इक्वल टू k, इट मीन्स ये तो ये है कि प्रोसेस की मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी. तो इन दिस केस i इज विल डिफाइन द प्रोसेस नंबर, j विल डिफाइन द रिसोर्स नंबर एंड k विल बी डिफाइन टोटल नंबर ऑफ इंस्टांसेस. तो इट मीन्स P of I process can demand k instances of resource type J. That means process हमारा MS Word है जो उसको कितने printer required हैं during its execution. J can be a printer. So maximum जो है वो एक 2D array है, एक matrix है जो क्या बताती है कि process को कितना मैक्सिमम डिमांड होगा इन फ्यूचर. इन केस ऑफ अ बैंक मैक्सिमम विल बी कस्टमर को कितना कैश चाहिए होगा थ्रू आउट. नेक्स्ट वी हैव इज द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज एलोकेशन. एलोकेशन मतलब सेम है एज मैक्सिमम. एलोकेशन क्या है? सेम n इंटू m है. इट डिफाइंस कि कितना उसको मिल चुका है ऑलरेडी जितना हमने उसको एलोकेट कर दिया है. नीड क्या है? नीड हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं. जितना मैक्सिमम उसने बोला था कि उसको इतनी डिमांड है उसकी,
और जितना हम उसको ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं हम माइनस करेंगे तो विल गेट द नीड. Next is the algorithm. There are two algorithms. First we will do the safety algorithm. Next we will do the resource allocation. So in this case safety algorithm, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे. सेफ्टी एल्गोरिदम चेक करेगी कि क्या ऐसा कोई सिनेरियो है, ऐसी कोई सीक्वेंस है कि अगर हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर दे तो हम डेडलॉक से बच सकते हैं. सो इन दिस केस द फर्स्ट इज वी हैव टेकन टू टेम्परेरी वेरिएबल्स. टेम्परेरी एरे वी वुड से वर्क एंड फिनिश. इन दिस केस दो वेक्टर्स ले लिए हमने. ये टेम्परेरी स्टोरेज करने के लिए है बिकॉज इन दिस केस या तो हम सेफली हो जाएंगे, मतलब हमारा सिस्टम सेफ होगा या अनसेफ होगा. सो यहाँ पे हमने ओरिजिनल वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को, ओरिजिनल एरे की वैल्यू को कॉपी किया है इन वर्क. वर्क इज़ अ टेम्परेरी वेरिएबल है, लाइक वी कैन से आई इज इक्वल टू ए. सो हमने ए को कॉपी कर लिया. सो वर्क इज़ अ टेम्परेरी एरे एंड अवेलेबल इज़ अ एक्चुअल एरे. अब अवेलेबल क्या था? अवेलेबल है कि 1D एरे है कि कितने इंस्टांसेस किस रिसोर्सेज के हमारे पास अवेलेबल हैं. फिनिश एक एरे है. फिनिश इज़ लाइक ए फ्लैग. ये एक फ्लैग टाइप का एरे बनाया है. इसका काम सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा वाला प्रोसेस फिनिश हो गया है और कौन सा वाला प्रोसेस फिनिश नहीं हुआ है, सो दैट वी विल नॉट कंसिडर द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन. अगर एक प्रोसेस का फिनिश इज इक्वल टू फॉल्स है, दैट मीन्स वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी रेस में है. व्हेन फिनिश बिकम्स ट्रू ऑफ आई का मतलब है किस प्रोसेस का फिनिश ट्रू हुआ है. जिसका ट्रू हो जाएगा तो वो वाला प्रोसेस हमारा फिनिश हो जाएगा. सो ये एक फ्लैग है. सो इन दिस केस सिंपल है. हमने क्या करना है, हमने एक लूप चलानी है आई से सच दैट ये कंडीशन ट्रू हो जाए. सो इन दिस केस हम देखेंगे कि अगर फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स. अब हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो रेस में हैं, जो चाहते हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं बैंक में जो चाहते हैं हमें कैश मिले. सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो चाहते हैं हमें रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएं. सो अगर किसी प्रोसेस का फिनिश फॉल्स है, हमने शुरू में सबका फॉल्स किया है, दैट मीन्स एवरीबडी इज़ नॉट फिनिश्ड येट. सो अगर किसी का फिनिश फॉल्स है प्लस उसकी नीड इज़ लेस देन वर्क. अब क्या मतलब हुआ इसका? बैंक क्या देखेगी कि क्या आउट ऑफ कस्टमर जिनको अभी जो कस्टमर अभी भी रेस में हैं, फॉल्स हैं, मतलब वो फिनिश नहीं हुए हैं, और उनकी नीड जितना वो हमसे अभी नीड कर रहे हैं, नीड क्या होगी? मैक्सिमम माइनस एलोकेटेड. जितने हमने उनको दे दिए हुए हैं माइनस जितने उनको एक्चुअल में चाहिए थे टोटल, मैक्सिमम माइनस एलोकेटेड. तो अगर उनकी नीड कम है हमारे वर्क से, वर्क क्या है? अवेलेबल. अवेलेबल मतलब टोटल कैश, टोटल रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं. सो अवेलेबल है कि टोटल रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास. सो इन दिस केस हमने वर्क में उसको कॉपी कर लिया था उसकी वैल्यू को, तो वर्क मीन्स द टोटल अवेलेबल राइट नाउ. सो अगर हम देखेंगे कि किसकी नीड हम सेटिस्फाई कर सकते हैं जितना हमारे पास अभी कैश है, तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस मिलता है तो फिर हम थर्ड स्टेप में आ जाएंगे. अगर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं मिलता है जिसका फिनिश भी फॉल्स हो और जिसकी नीड भी कम हो, तो हम सीधा स्टेप 4 पे आ जाएंगे. पहले हम स्टेप 3 देखते हैं. इन दिस केस हमने, अगर मान लो हम एक चीज़ एज्यूम करेंगे कि अगर उसकी नीड हमने सेटिस्फाई कर दी तो वो प्रोसेस फिनिश हो जाएगा फॉर श्योर, बिकॉज वो वेट में नहीं रहेगा क्योंकि उसकी नीड फुलफिल हो गई है. फिर वो क्या करेगा? फिर उसके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल थे उसके पास जो एलोकेटेड थे वो हमने वापस ले लेने हैं. वो हमें वापस दे देगा बिकॉज प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड. तो जितने उसने हमें वापस दिए वो हमारे टोटल में ऐड हो जाएंगे. तो दैट मीन्स वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन. इट मीन्स हमने लेट से उसको पहले कुछ रिसोर्सेज दे दिए थे. मान लो बैंक ने अपने कस्टमर को कुछ कैश दे दिया था लोन के जैसे, और उसको जितनी और ज़रूरत थी, मान लो हमारे पास बैंक के पास उतना भी कैश था तो उसने उतना भी दे दिया. तो कस्टमर फिर क्या करेगा? पे बैक कर देगा. पे बैक में वो क्या करेगा? जितना अभी दिया वो भी प्लस जितना पहले दिया हुआ था वो भी. तो हमारी एलोकेशन जो थी उसकी सारी वापस आ जाएगी. तो वर्क हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा. वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन. और वो वाला जो पर्टिकुलर जिस भी प्रोसेस से हमने सारी एलोकेशन वापस ले ली उसको हम फिनिश कर देंगे. फिनिश ऑफ आई मीन्स दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इंडेक्स वैल्यू वो ट्रू हो जाएगी कि हाँ ये प्रोसेस अभी फिनिश हो गया है, ये आउट ऑफ द रेस हो गया है, आउट ऑफ दीज कस्टमर्स और आउट ऑफ दीज प्रोसेसेस.
नेक्स्ट अगर फिनिश, फिर हम देखेंगे, अब देखो सेकंड स्टेप से हम सीधा जंप करेंगे फोर्थ में, अदरवाइज हम थर्ड में आते रहेंगे। तो ऐसे करके अगर तो हमें प्रोसेसेस मिलते रहे जिनकी नीड खत्म हो रही है, बिकॉज वर्क हमारा एवरी टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारे पास कैश एवरी टाइम बढ़ रहा है, सो अगर कोई ऐसी सीक्वेंस बनेगी तो एंड में क्या हो जाएगा, सारे प्रोसेसेस फिनिश हो जाएंगे। तो इन दिस सिनेरियो हमें कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं मिलेगा जिसकी फिनिश वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो हम सीधा किस में आ जाएंगे, फोर्थ में। फोर्थ में हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू फॉर ऑल आई, दैट मीन्स अगर सारे प्रोसेसेस का फिनिश आई ट्रू है, अभी सारे ख़त्म हो गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो भी फॉल्स है, फिनिश नहीं हुआ है, तो हम बोलेंगे सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट, तभी बोलेंगे सिस्टम सेफ है। अगर ऐसा कोई प्रोसेस है जिसका फिनिश अभी फॉल्स हुआ है, फॉल्स है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम जंप किस वजह से करें, फिर जंप इसलिए करें क्योंकि किसी भी प्रोसेस की नीड जो है हमारे वर्क से कम नहीं है, तो हम सेकंड कंडीशन की वजह से जंप किया। तो अगर हमने सेकंड कंडीशन की वजह से जंप किया तो इन दिस केस इट विल बी अनसेफ स्टेट। सो इट इज़ वेरी सिंपल। इन दिस केस हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या हमारे पास उतना चीज़ अवेलेबल है किसी प्रोसेस का जो भी ख़त्म नहीं हुआ है, जितना उसकी नीड से ज़्यादा है, तो हम उसको नीड उसका एलोकेट करके एज्यूम करते हैं कि फिर वो फिनिश हो गया और उसके पास जो पहले मिला हुआ था वो भी हमें वापस दे देगा, तो हमारा अवेलेबल बढ़ जाएगा, वर्क बढ़ जाएगा। फिर हम ऐसे करके एक सेफ सीक्वेंस बनाते रहेंगे एंड लेटर ऑन चेक करेंगे, अगर सारे फिनिश हो गए तो सेफ है, नहीं तो अनसेफ है। We'll do with an example. Even if you're not getting it this time, you will get it with an example for sure. Now the second algorithm which comes under Banker's algorithm is resource request algorithm. This algorithm will first decide whether to allocate or not, but this will also call safety algorithm in the meanwhile. So in this case, लेट रिक्वेस्ट, अब जब भी हमें कोई नया कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा तो हम उसको एक रिक्वेस्ट आए एक एरे में रखेंगे। Now in this case the I will define the index of process. Let's say request of 0, that means 0th process ने request किया है, request of 1 that means 1 P1 ने request किया up to so on. So if request of I of j is equal to k, that means the process P of I wants k instances of j resource type. तो यहाँ पे process का number mention होगा, j जो index होगा वो resource का index होगा, के है कितनी इंस्टांसेस उसको अभी चाहिए हैं। रिक्वेस्ट इज़ लाइक रियल लाइफ में उसने रिक्वेस्ट कर दिया, पहले तो उसने हमें बोला था मैक्सिमम इतने चाहिए हैं, अब रिक्वेस्ट में वो बोल रहा है आई वांट इट नाउ। सो इन दिस केस पहले हम ये चेक करेंगे, बिफोर एलोकेशन पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो अभी उसने मांगा है वो उसकी नीड से कम है। इसका क्या मतलब हुआ, नीड क्या थी कि उसने बोला था मुझे मैक्सिमम इतने चाहिए, लेट्स से उसने बोला मुझे मैक्सिमम 10 चाहिए और 4 हमने उसको ऑलरेडी दे दिए हुए थे, तो अब उसकी नीड क्या हो जाएगी 6। तो अभी हम चेक करेंगे रिक्वेस्ट में क्या वो 6 से कम मांग रहा है या ज़्यादा मांग रहा है। अगर वो 6 से ज़्यादा मांगेगा तो सीधा ही एरर आ जाएगा कि यू आर आस्किंग मोर देन योर लिमिट, आपने जितना बोला था यू आर आस्किंग मोर देन दैट। सो यहाँ से ही हम उसको एरर शो करेंगे। सेकेंड स्टेप, मान लो वो नीड से कम मांग रहा है, दैट मीन्स वो 6 या 6 से इक्वल या कम मांग रहा है। फिर हम क्या देखेंगे कि क्या रिक्वेस्ट जितना वो कर रहा है अभी हमारे पास है उतना, अगर है तो थर्ड स्टेप में जाएंगे, अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे प्लीज़ वेट। फॉर एग्जांपल बैंक ने बहुत सारे कस्टमर्स की नीड को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अभी बैंक ने अवेलेबल उसके पास अभी टोटल अवेलेबल का मतलब है टोटल कैश कितना है बैंक पे के पास, अवेलेबल का मतलब है अभी इन दिस पर्टिकुलर स्टेट उसके पास कितना बचा है। सो अगर बैंक के पास अभी 4 है और कस्टमर इज आस्किंग 5, वो अपनी नीड में ही मांग रहा है, अपनी लिमिट में ही है, बट बैंक के पास अभी उतना है ही नहीं है कैश, सो सिस्टम के पास उतने रिसोर्सेज अभी अवेलेबल ही नहीं है, सो उसको बोलेंगे वेट। लेट्स से थर्ड कंडीशन क्या है कि उसने लिमिट में ही आस्क किया है एंड बैंक के पास अवेलेबल भी है, देन द सिस्टम विल प्रिटेंड, सिस्टम बोलेगा कि लेट्स प्रिटेंड कि आई हैव एलोकेटेड द रिसोर्सेज एंड देन विल सी द नेक्स्ट सिनेरियो whether the system is safe or not. So इस केस में बहुत सिंपल है, इसमें बोला अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, मतलब जितना अभी बैंक के पास अवेलेबल था उसमें से माइनस कर लो उसकी रिक्वेस्ट, हमने उसको मान लो दे दिया उतना रिसोर्सेज। नेक्स्ट उसने बोला जो एलोकेशन है, एलोकेशन में आए हैं, अवेलेबल में आई नहीं है, अवेलेबल इज 1D अरे अवेलेबल क्या कहता है
जितना हमने उसने हमें मांगा हमने दे दिया, तो हमारा अवेलेबल कम हो जाएगा, बैंक के पास कैश कम हो जाएगा। तो उसमें बोला कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को इस आय को उतना ज़्यादा एलोकेशन हो जाएगा, क्योंकि एलोकेशन क्या स्टोर कर रहा था कि कितना ऑलरेडी उसको मिला हुआ है। तो मान लो इसमें हमने उसको पहले 4 दिया हुआ था, ठीक है, अब हमने उसको 5 और दे दिए, तो टोटल उसके पास एलोकेशन अभी 9 हो जाएगी। पहले उसको 4 एलोकेटेड था, अभी हमने उसको रिक्वेस्टेड 5 भी दे दिया, तो उसके पास 9 हो जाएगा। लेकिन बैंक के पास में से 5 माइनस हो जाएगा। लेट से बैंक के पास अभी था 50, तो बैंक का 5 माइनस हो उसके बचेगा 45, अभी बैंक के पास बच गया। बैंक में से माइनस करो, कस्टमर के एलोकेशन में ऐड कर दो, नीड उसकी कम कर दो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी लॉजिकल कि ठीक है उसकी नीड हमने कम करनी है, क्योंकि पहले उसकी नीड कितनी थी, पहले उसकी नीड थी 6, अब हमने उसमें से 6 में से उसको 5 दे दिया, तो उसकी नीड बच जाएगी 1, तो हमने नीड भी माइनस कर दिया। अब जो हमारे सिस्टम की स्टेट होगी आफ्टर दिस, फिर हमने फिर से सेफ्टी एल्गोरिदम चलाना है, द प्रीवियस एल्गोरिदम। फिर उसमें देखेंगे अगर सीक्वेंस बन रही है, सिस्टम सेफ है, तो गो फॉर दिस, अदरवाइज रीस्टोर कर दो। रीस्टोर मतलब रोल बैक कर दो, नहीं तो ये वाला चीज़ रोल बैक हो जाएगी, ये वाली चीज़ को हम कॉपी नहीं करेंगे, तो फिर से हम पुराने अवेलेबल और एलोकेशन और नीड पे चले जाएंगे, बिकॉज अभी हमारा सिस्टम इस एलोकेशन की वजह से डेडलॉक में जा सकता है, अनसेफ हो सकता है। Thank you for watching the video. Please download the notes and we'll do the example in the next video. If you have any doubts, please type in the comment section. Thank you so much.